So I welcome every one of you for this live lessons from Ramayana Value Education series, session number 7. So this syllabus and course is dedicated to Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ji, who is the founder Acharya of ISKCON. So we'll start with prayer, because any good thing we should start with prayers, and we should take blessings of our superiors and our spiritual teachers or any teachers. So I'll start with a short prayer. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले. So see here, I offer these prayers to my spiritual teachers and all the saintly personalities and the all divine personalities present in the Ramayana, so as to get their blessing, so that I can speak something tangible and share something tangible with all of you, which will benefit me also and all of you also. So we'll start with today's session. So today's session is success tips from Hanuman's Lanka trip. It's very amazing session. So we'll see now this session. So see first what happened. So we'll set the scene before starting with the Hanuman's Lanka trip. So when, like we see that when Sugriva and Lord Ramachandra met, and last time we have seen that in last session that Lord Ramachandra had killed Wali and Sugriv became the king. And Sugriv, then Lord Ramachandra told Sugriv that its rainy season is starting now. So for 4 months you can take rest, or you can wait for 4 months. After 4 months, once rainy season ends, we will start searching Mother Sita. So that time, then Sugriv goes into his palace and he starts enjoying like anything, because for many years he was not even able to get basic necessities of life also. So he started enjoying so much like many other things, and we can see that. And he got so much engrossed in that sense gratification and enjoyment that he forgot his goal and his purpose. That after 4 months he has to start searching for Mother Sita. So we can see that then that time we can see that he started searching Mother Sita. But like he should start searching Mother Sita, but 4 months has already passed. 4 महीने already हो चुके थे. So that time still he was stooped in the sense gratification, completely engrossed in the sense gratification. So Lord Ramachandra was waiting when this Sugriva will get awakened and when he will start seeing Mother Sita. So then that time Lord Ramachandra sends Lakshmanji to Sugriv that you go and you remind this Sugriva of his service and bring out him from sense gratification and tell him that what is his goal, what is his service, what he promised. He promised Lord Ramachandra that you solve my problem, you make me king, you kill Wali, and in return I will search Mother Sita and I will help you in fighting with this demon Ravana. So that was their promises to each other. So Lord Ramachandra fulfilled his promise, but this Sugriva, he forgot his promise.
So that time then Lakshmanji went to that palace, and he called out for Sugriva, but he was engrossed in sense gratification and he could not understand that even Lord Lakshman came. Then that time, then he was not coming, only Lakshmanji became so angry. He became so angry and enraged. एंड उन्होंने क्या किया, जो उनका धनुष था उसकी बस प्रत्यंचा को हिलाया, तो उससे बहुत बड़ा साउंड क्रिएट हो गया। तो उससे पूरा उनका जो महल था पूरा उसमें वो महल हिल गया पूरा, उसमें इतना डरावना साउंड ऐसा क्रिएट हो गया। एंड दिस everybody understood that something biggest danger has come. Then and then that time Tara, the wife of Sugriva, came running to Lakshman and immediately fall at the feet of the Lakshmanji that please control your anger, please don't kill Sugriva, please protect him. I ask forgiveness, I beg forgiveness from his side. Because why Tara, when she knows that I am woman, so Lakshmanji will not show his anger on woman. तो देखो ये खासियत है लक्ष्मण जी की, या कोई भगवान या कोई डिवाइन पर्सनालिटी अगर गुस्सा भी होते हैं तो क्या होगा कि उनका एंगर उनके कंट्रोल में रहता है, वो एंगर के कंट्रोल में नहीं होते। दैट इज देयर स्पेशलिटी। कोई लक्ष्मण जी तो भगवान जी भगवान है, तो उनको तो भगवान के अवतारी है, वो तो अनंत शेष है, तो उनको कैसे गुस्सा आ गया? दे कैन बिकम एंग्री बट they use anger does not use them. They are not under control of anger, but anger is under their control. That is the secret. So see, हमने अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एंगर मेरे कंट्रोल में है, not like that. Most of the time 99.999 times 99% times and we are under the control of anger. तो देखिए लक्ष्मण जी जो है उस टाइम पे, and great teachers can use angers. Like Lakshman ji represents a great spiritual teacher, so he can use anger to discipline his students and make them obedient, tell them the truth, and to awaken them to do their duties sincerely. For that purpose, he can use anger. Okay, like that we can see here. And then Lakshman ji became angry. That time Tara came, so immediately Lakshmanji did not show her his anger to her. Then he got pacified because she is a woman, he cannot harm her. So से नहीं तो अगर आजकल का अगर गुस्सा देखेंगे तो सामने कौन आता है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, कोई कुछ देखता नहीं, become so angry and they start showing their anger like anything. So but Lakshmanji was not like that. His anger was controlled, and then Sugriva was understood his mistake and he came and he fell at the feet of the Lakshmanji and he understood his mistake and he immediately ordered his army to get divided into four groups and started he ordered them that you start searching Mother Sita in all directions, in 4 directions. He sent 4 groups to search Mother Sita. ठीक है, तो दैट टाइम देखते कि हम लोग उन्होंने फिर साउथ डायरेक्शन जो था, साउथ डायरेक्शन ही सेंट हिज मंकी आर्मी लीडेड बाय अंगद। तो साउथ डायरेक्शन में जो ग्रुप गया था मंकी आर्मी का, तो उसके लीडर कौन थे? अंगद थे। ठीक है, तो अंगद के साथ में उनके साथ में जो थे, उनके साथ में जामुवन जी थे, हनुमान जी थे, से महान महान व्यक्ति थे उनके ग्रुप में। ठीक है, तो साउथ डायरेक्शन में माता सीता की खोज में चले गए वो, तो खोज रहे थे। तो देखिए ये जो सेशन है आज का वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डीप and we can take so many lessons from this session. So and it's too vast. In it we can see that there are many stories, many pastimes of the Lord, many pastimes. बहुत सारे भगवान की लीला है इसके अंदर। तो I don't think so it will be completed today. So I will go little, rather than going so fast and you will not understand anything better than that, I feel that I will go little slow, and whatever lesson and whatever pastimes you are able to cover today, that much will cover. Remaining will take second part of this session in next Sunday. Okay, so today we'll take that much part only, which we will able to cover in time. So see here now. तो फिर उसके बाद देखो इससे क्या लेसन सीख सकते थे हम लोग कि सुग्रीव जो था he became very lazy in service of the Lord Ram. लक्ष्मण जी खुद के लिए गुस्सा हुए नहीं, वो गुस्सा क्यों हुए कि भगवान की जो सेवा है वो सुग्रीव नहीं कर रहा था, भगवान की सेवा भूल गया, है ना। और उसने जो भगवान को प्रॉमिस किया था, लॉर्ड रामचंद्र इज लॉर्ड हिमसेल्फ, so he forgot service unto Lord Ramachandra. How can he do like that? How can he break his promise to Lord Ramachandra?
So that's why Lakshmanji became angry. He didn't become angry for his own selfish motives, और उनका किसी ने कुछ सुना नहीं या उनका इंसल्ट किया उसके लिए वो गुस्सा नहीं हुए. So that is greatness of Lakshmanji. He can become angry also, he can become humble also, he can become somebody's servant also for Lord Ramachandra's sake. For Lord Ramachandra's sake, for Lord Ramachandra's service, whatever it takes to do, whatever it requires to do, he is ready to do. Then it may be by becoming angry or by becoming humble. So Lakshmanji was fully surrender unto Lord Ramachandra to render service. Okay. So देखिए आगे, तो sense enjoyment makes us forget Lord service. तो जैसे हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में डूब जाते हैं, सेंस इंजॉयमेंट करने लग जाते हैं, दैट देन वी फॉरगेट लॉर्ड सर्विस. दैट्स व्हाई इट इज प्रोहिबिटेड कि सेंस इंजॉयमेंट जो है, लाइक जैसे जो गलत चीजें हैं, 4 पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ, तो सिंफुल जो चीजें हैं दैट वी शुड नॉट डू. ठीक है, जैसे ड्रिंकिंग लिकर एंड ऑल दोस थिंग्स जो है, वो सारी चीजें, अफेयर्स एंड ऑल those things are considered to be sinful things, sinful activities. So if you do sinful activities, then we forget Lord service, we forget Lord, and we doesn't remember our constitutional position, our promises to the Lord, and we forget Lord and we forget ourselves also. So that is the danger in doing sense enjoyment. So that we can see here. So then see afterwards स्वयं प्रभास की हो, तो देन कुछ वो जैसे साउथ डायरेक्शन में जो पार्टी सर्च पार्टी गई थी, है ना, टू सर्च मदर सीता. सो दैट टाइम then they went on going and so long they went on going, and finally they covered so much distance. They became so tired, thirsty, hungry. So उनको बहुत ज्यादा प्यास भूख लगी, और वो चल भी नहीं पा रहे थे आगे, बहुत ज्यादा थक गए थे. तो उस टाइम पे दैट टाइम दे सॉ सम केव. ठीक है, तो उस केव का एक दरवाजा, बहुत बड़ा सा केव का दरवाजा उन्होंने देखा, केव देखे, तो उन्होंने सोचा चलो अंदर जाके देखते हैं क्या है उसमें. तो जैसे ही उस टाइम पे हम देखते हैं कि अंदर गए केव के अंदर, तो देयर वाज दे सॉ ब्राइट लाइट कमिंग फ्रॉम इट. ठीक है, तो जो लाइट आ रहा था, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रहा था, दे क्विकली मूव टुवर्ड्स इट. तो वो आगे तुरंत धीरे धीरे आगे क्या हो गया, आगे चले गए, पास गए कि लाइट किधर से आ रहा है. तो लाइट की तरफ जैसे जाते तो उधर देखा उन्होंने कि बहुत बड़ा एक खुला एरिया मिला, केव के अंदर बहुत बड़ा एरिया मिला उनको. एंड उन्होंने देखा कि जो केव था, जनरली केव में अंधेरा होना चाहिए, बट ये केव जो है पूरा एकदम ब्रिलियंटली इफल्जेंट था. इट वाज कंप्लीटली लाइटेड अप वेरी नाइसली. तो उन्होंने देखा कि देयर वर गोल्डन ट्रीज. ठीक है, गोल्डन सुनहरे पेड़ थे, जिससे क्या हो रहा था, देखिए हम लोग बहुत सारे गोल्डन ट्रीज थे, उससे लाइट आ रहा था, उससे लाइट इमर्ज हो रहा था. तो ये जो गोल्डन ट्रीज थे, उनको कलर अलग, ब्राइटली कलर फ्लावर्स थे, ब्राइटली कलर लीव्स थे, जिससे क्या हो रहा था, लाइट आ रहा था. एंड उन्होंने देखा कि इनके जो फ्रूट्स थे, जो पेड़ों के, तो वो चमक रहे थे रूबीज एमरल्ड्स की तरह, उनके जो फ्रूट्स थे वो पेड़ों के, तो इट वाज लाइक ए ज्वेल्स. ठीक है, तो ये जो ट्रीज थे, हम देखे कि लोटस लोटस पॉन्ड्स थे जो वाटर के उसमें, और वो जो अलग नियर जो पॉन्ड्स थे अलग अलग. ठीक है, तो उसका ये जो ट्रीज थे, उनका रिफ्लेक्शन उस पॉन्ड में गिर रहा था, दिख रहा था. एंड दिस पॉन्ड्स हैज वेरी वेरी क्लियर वाटर, एंड उसके अंदर गोल्डन फिशेस थी. ठीक है, तो मंकीज saw that, and they saw that there were palaces which were made up of gold and silver. तो बहुत सारे अलग अलग पैलेसेस थे, महल थे जो सोने चांदी के बने हुए थे, और जिसमें बहुत सारे अलग अलग जेम एंड हम देखते पर्ल्स जो स्टडेड थे उसमें. और उधर उधर बहुत सारा हम देखते कि बहुत हाईली हाईली रिफाइंड एंड यू कैन सी एक्सपेंसिव एंड सो मच costly and rare textiles were also there, lying there on the ground, on the floor. तो वो देखा कि उधर बहुत ऐसे दिव्य खाना भी था, उधर बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड स्टफ्स थे. देयर वाज वैरायटी ऑफ ड्रिंक्स अवेलेबल, गोल्ड टेबल के ऊपर रखा होता, ऐसा बहुत सारे डिस्क्रिप्शन. अभी उस डिस्क्रिप्शन में डिटेल में नहीं जाएंगे. तो फिर उसके बाद आगे देखते हम लोग, आगे गए वो, तो उन्होंने देखा कि वहां पे एक लेडी, शी वाज, देखिए दिख रहा है आपको इसमें पिक्चर में, पीपीटी में, तो वन लेडी वाज सैट ओवर देयर एंड शी वाज डूइंग तपस्या. ठीक है, एंड so much effulgence was coming out of her body, and she wore the dress of a sadhvi. Yes, sadhu, we can say that. So
then she was sadhvi ascetic. So that time तो हनुमान जी गए उनकी तरफ, और हनुमान जी गए, ऑडियो प्लीज आपका ऑफ कीजिए सब लोग। हनुमान जी गए और उन्होंने क्या किया, उनको पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो that time, that lady opened her eyes and immediately she understood that these are the servants of Lord Ramachandra. They are in the service of the Lord Ramachandra. They are on the mission of searching Mother Sita, because in her meditation she many times saw Lord Ramachandra and understood that Lord Ramachandra is a divine personality. He is God himself. He is supreme personality of Godhead. So that's why then immediately then she became pleased to see all these vanaras and all this searching party, because she thought that now I have opportunity to serve Lord Ramchandra. At least I am not able to serve him directly, but at least I can serve his servants. So by that he will become pleased. So immediately she opened her eyes and उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया कि केव कैसे आया वगैरह। मया दानव नाम का जो राक्षस दानव था, राक्षस था, तो वो क्या करता था, तो वो दानव ने इस केव को बनाया था और उस केव में रहता था। वो केव अपने लिए बनाया था, कुछ सालों तक ही स्टेड ओवर हियर। तो ये जो माया दानव है, ही इज आर्किटेक्ट, सेलेस्टियल आर्किटेक्ट ऑफ डीमंस। ठीक है, जैसे विश्वकर्मा है देवताओं के आर्किटेक्ट, वैसे ही सेलेस्टियल आर्किटेक्ट डीमंस के भी थे, तो वो थे माया दानव। तो उन्होंने बनाया था ये जो महल थे, सब कुछ जो केव था वो सब कुछ उन्होंने बनाया था, पर वो चले गए। फिर उसके बाद में क्यों उनको मार दिया गया, तो क्योंकि वो डीमन थे, तो वो एक जो अप्सरा थी उनके साथ रहते थे, बट इंद्र देव उनको उनको मार डाला इंद्र देव ने। एंड देन दैट अप्सरा वेंट टू हेवन बैक अगेन, बिकॉज दैट अप्सरा इज टू स्टे विद स्वयं प्रभा। दैट लेडी जो ये तपस्या करे उनका नाम स्वयं प्रभा था। तो फिर उन्होंने पूरा होल स्टोरी शॉर्ट में बता दिया, हम स्टोरी के डिटेल्स में नहीं जाएंगे, कट शॉर्ट करके उन्होंने बता दिया उनको। ठीक है, तो जैसे मैंने ब्रीफ आइडिया दिया आपको, वैसे उन्होंने बता दिया उनको। देन शी टोल्ड दैट ऑल ऑफ यू कैन टेक, तो उधर बहुत सारे डिवाइन फूड स्टफ्स थे, बहुत सारे अलग अलग सेलेस्टियल ड्रिंक्स थे। तो उन्होंने बताया कि क्या कीजिए, आप जाइए और इस जो फूड स्टफ है, आप बहुत भूखे हैं पैसे, तो आप ये फूड स्टफ ड्रिंक का आनंद उठाए और सब चीजें ले लीजिए। फिर उन्होंने सब ऑनर से बात किया, फिर सारे जो मंकीज थे, they told about their mission and they told that we are here to serve Lord Ramachandra, we are here for searching Mother Sita, but we don't know where to go and where to find. We have searched so much but we didn't found Mother Sita. And she told, okay, no problem, you keep on searching Mother Sita, you will get Mother Sita. ठीक है, तो उन्होंने बताया कि क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, मैं आपको क्या करती हूँ, बाहर तक के ओके दरवाजे, आप आपके आंखें बंद कर दीजिए सब लोग। और हमने देखा कि आप आंखें बंद करके बस एक लाइन में खड़े हो जाइए, आई विल टेक आउट ऑफ द केव। तो मैं तुरंत आपको सबको मेरी योगिक शक्तियां जो है उससे क्या करूंगी, बाहर लेके जाऊंगी। ठीक है, देन शी टुक देम ऑल आउट ऑफ द केव एंड दे इमीडिएटली, कुछ विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट्स और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, दे इमीडिएटली saw themselves in front of the cave. जिस केव से अंदर इतना अंदर गए थे वो तुरंत वो बाहर आ गए। then that lady, then she स्वयं प्रभा जिनका नाम था, वो चले गए और उन्होंने बोला कि क्या होगा, कि you will surely get success, so don't get hopeless. तो बोले कि continue searching, and then she went back again into her cave. तो फिर मंकी जो थे वो केव के बाहर खड़े रहे, फिर उनको देखा कि अरे now they rejuvenated, their hunger and thirst were gone, they took celestial foodstuffs, so their tiredness was gone, and then they now ready for their mission. तो फिर उन्होंने immediately क्या किया, और ज्यादा vigorously क्या किया, साउदर्न ओशियन में ओशियन की तरफ जाना चालू किया और उधर माता सीता की खोज चालू की। ठीक है, तो देन दे vigorously they move ahead and then they reach on the beach of the southern ocean. तो उधर वो बीच पे जैसे ही पहुंचे तो उस टाइम पे देखा कि उधर समुद्र, इतना बड़ा समुद्र, अभी उसको कैसे लांघेंगे हम लोग, कैसे जाएंगे, इतना बड़ा, कहीं दूर दूर तक कुछ नामो निशान नहीं दिख रहा किसी सिटी का ना किसी चीज का, अभी कैसे जाएंगे हम, और हमें पता भी नहीं इस समुद्र के आगे क्या है, रावण है कि नहीं है, रहता है कि नहीं, मदर सीता उधर हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या करेंगे, अभी हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। फिर सब लोग बहुत हताश हो गए, बहुत ज्यादा
निराश हो गए वो और सोच रहे थे क्या करेंगे। तो कुछ लोग सोच रहे थे कि चलो अभी वापस तो नहीं जा सकते, हम कैसे मुंह दिखाएंगे अपने किंग को, और रामचंद्र को उन्होंने मिशन दिया था, हम फेल होके जा रहे, वी कांट गो। पहले से हमने इतना डिले किया, उनको ऑलरेडी 6 या 8 वीक हो गए थे, कुछ कुछ तो सर्च करते करते मदर सीता के। तो बोल रहे ऑलरेडी वी आर सो लेट, और इतना लेट अगर हम ऐसे ही मुंह उठा के जाएंगे, कुछ सक्सेस नहीं, कुछ नहीं, कुछ क्ल्यू भी नहीं मिला हमें, then how will face Lord Ramachandra, how will face our king Sugriv who order us to serve him? उनके ऑर्डर तो हमने फॉलो ही नहीं किया, तो विल गो, देन they will not be pleased, and then how can we live? So they thought, कुछ monkeys बोले कि ठीक है, we'll stay here only unless until we find mother Sita and we'll fast until death. तो हम डेथ तक क्या करेंगे, स्टार्व करेंगे, फास्टिंग करेंगे बोले। तो that time then some monkeys thought like that. Some monkeys said, okay, anyways, we are not going to go back, so we'll go back to that cave, Swayamprabha's cave, and we'll enjoy everything and we'll live there happily whole life. अभी क्या कर सकते, बोले हमने ट्राई तो किया बट कुछ मदद से था तो मिली ही नहीं है, तो जाने दो, अभी वैसे भी हम इधर भूखे मरने से अच्छा उस केव में जाके एंजॉय करेंगे, एंड विल स्टे देयर ओनली, विल होल लाइफ विल लिव ओवर देयर ओनली। बट देन इमीडिएटली हनुमान जी टोल्ड, अरे ऐसे मत कीजिए, हमें भगवान ने सेवा दिया है, और अपने जो किंग है उन्होंने ऑर्डर दिया था, है ना, ही ऑर्डर अस दैट, कि उन्होंने बताया कि हमें माता सीता की खोज करने के लिए भेजा गया, उनकी न्यूज लाने के लिए भेजा गया। तो ये क्या हम सोच रहे हैं कि कोई सोच रहा है कि हम उधर केव में जाके एंजॉय करेंगे, उधर जाके बोले इट डजंट, अगर हम वापस नहीं गए तो दे आर सो पावरफुल। तो उन्होंने वो सीक्रेट पूछा था मंकीज ने, केव ऐसा ये कैसे, क्या ऐसा बना हुआ केव के अंदर, ये सब कैसे होता है। देन that ascetic told it is just the illusion, ठीक है, it is just illusion created by Maya Danav। तो बोले कि लॉर्ड रामचंद्र एंड लक्ष्मण जी सो पावरफुल, उनका एक एरो सब इल्यूजन को खत्म करके हमें सर्च कर सकते हैं, एंड दे कैन डिस्ट्रॉय अस इफ वी डोंट फॉलो देयर ऑर्डर, और नॉट टू फॉलो ऑर्डर, एटलीस्ट वी शुड रिपोर्ट टू देम, वी शुड नॉट, हम देखते कि उनको उनके अगेंस्ट रिबेल नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट गो एस्ट्रे फ्रॉम देयर इंस्ट्रक्शन, ऐसे बोले हनुमान जी ने। और उनको बोला ये क्या कर रहे हैं हम लोग, किस लिए आए हैं, आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बोले। एंड उस टाइम पे फिर उनको क्या दिखा कि देखिए ये तो अभी स्वयं प्रभास केव से क्या लेसन सीख सकते हैं हम लोग, देखिए स्वयं प्रभास केव से क्या लेसन सीख सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट इज उत्साहत निश्चयात धैर्यात, क्या क्या सीख सकते हैं हम लोग, उत्साहत निश्चयात धैर्यात। एम आई ऑडिबल टू ऑल एवरीवन, मेरा आवाज? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, बी उत्साहत, उत्साहत मीन्स बी इंथुजियास्टिक, निश्चय डिटरमाइन, धैर्यात पेशेंट, ठीक है। तो उत्साह मतलब हम कोई भी चीज करते हैं तो अगर उत्साह है तो उसमें सक्सेस मिलने की कुछ चांसेस है, और देन हैप्पीली वी कैन डू इट एंड वी कैन गो अहेड, विल नॉट गिव अप, ठीक है, हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम विल बी इंथुजियास्टिक। तो उत्साह निश्चय मीन्स वी शुड बी डिटरमाइंड, शुड बी डिटरमाइंड कि मुझे ये चीज करना ही है, मुझे ये चीज पाके रहना है। जैसे monkeys were determined to search mother Sita, तो that time that was like that। तो भले ही बहुत hungry थे, they were very hungry, they were very thirsty and they were very tired, still they continue to move on to search mother Sita, माता सीता को सर्च करने के लिए वो आगे चलते जा रहे थे, enthusiastically चलते जा रहे थे। and they decided that either we'll search mother Sita, unless until we search mother Sita will not go back, we'll die here but we'll not go back unless until we search mother Sita। That was the determination, they are strong, determined and dhairyat, है ना। We should be patient, we should have patience, that although right now I may get failure, right now I may feel I may be facing so many obstacles, so many difficulties, so many distractions, and so many discouragements from other people and surroundings, still I have to go on and I have to wait for the success, it will come. Although there may be so many failures apparently coming to our path, but one day we'll be successful surely, so we should have that patience. Patience is very, very important. So enthusiasm, determination, and patience. We should have faith on the Lord that whatever is happening with us, that is good for our welfare only. So that is the thing. Okay? So हमने देखा that is good for our welfare. So this is the thing we were seeing. And another thing is rise above. So next lesson is rise above the laziness. Just a minute. Just a minute.
So see, we were saying that rise above laziness, selfishness, blaming authority, depression. तो ये जो चीजें है, तो दिस इज अनदर लेसन. तो जैसे लेजीनेस, अभी कभी कभी लेजीनेस के कारण हम करते ही नहीं, मेहनत ही नहीं करते. हम इंथुजियास्टिक होने की जगह वी बिकम सो लेजी एंड वी डोंट एंडेवर ओनली टू अचीव अवर गोल्स. हम उसके वैसे भी तो हो नहीं रहा, इतना किया कुछ नहीं हो रहा है, आई एम नॉट गेटिंग मार्क्स, मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, इतना पढ़ता हूँ कुछ याद नहीं रहता, कुछ समझता नहीं है, और हम सब एंडेवर करना ही छोड़ देते हैं. And sometimes we become so selfish that even we become like that. जैसे वो monkeys ने सोचा कि क्या करेंगे, बोले अभी जाने तो वैसे भी नहीं मिल रहे माता से, तो इधर फास्ट करके मरने से अच्छा क्या करेंगे हम लोग, जाके उधर मस्त केव में जाके पूरा लाइफ एंजॉय करेंगे हम लोग. तो किसको पता चलने वाला है, वापस जाने का जरूरत भी नहीं है, कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा हमको, एंड विल एंजॉय देयर life. So that is selfishness. So sometimes selfishness can create impediments in our goal, है ना. So due to selfishness, sometimes you can plan to harm others, sometimes you can try to plan something ill about others so that to stop them from getting success, so as we can become success. So that is very dangerous things. Then blaming authority, sometimes we blame teachers and parents. क्या ये टीचर लोग ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, ये टीचर ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया. Sometimes we blame parents कि क्या है, मेरे पेरेंट ने मुझे ये फैसिलिटी नहीं दिया, ये नहीं दिया, मुझे इधर नहीं डाला, उधर नहीं डाला, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं. So keep on blaming parents, teachers, and college and principals and all those things. So that is a blame game. Then that leads to disasters in future, and we sometimes we get, then all these things leads to depression. We become depressed, and so much depressed and hurted and all. So that is very dangerous thing. The depression. Then due to depression, we can't do anything. We can't focus on anything, and we give up our endeavors. And ultimately, even if we are close to success, even if we are going to just attain success, but if we go into the depression, then immediately, like, we'll lose our endeavor, we'll stop our all endeavors, we'll lose our confidence, and we'll, even if we are going to achieve success, but instead of success, we'll achieve be great failure. Although we are capable of achieving success, although we are very near to success, but that depression can create, then convert that great success into the great failure. So that we should be very careful regarding these things. Laziness, selfishness, blaming authority. Although we should never blame authority. We should try to follow them whatever they are telling, and we should thoughtful. If some problem is there, we should clarify with them. We should convey them. We should have proper communication with them. Okay, so we'll move ahead now. So see, Angada's depressed proposal. Let us fast into that I told already. Tara's selfish proposal. Let us live and enjoy in this cave without fear. इसी में रहो. So that we have seen. तो नेक्स्ट आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स, कि वैसा फिर हनुमान जी ने बताया उनको कि अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं हम लोग, आप ये क्या सोच रहे हैं कि इधर ही रह के एंजॉय करेंगे. दिस इज नॉट गुड प्रपोजल एट ऑल. वी आर हियर फॉर सर्विस, वी शुड रेंडर सर्विस ना. वी हैव प्रॉमिस्ड लॉर्ड रामचंद्र दैट विल सर्च मदर सीता एंड विल कम बैक. तो दैट टाइम वो सब उनका डिस्कशन चल रहा था. तो उस टाइम पे अंगद जो है बता रहा था, बोले जटायु का एग्जाम्पल देखिए. जटायु ने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की लॉर्ड रामचंद्र की सेवा के लिए, एंड उन्होंने क्या किया, पूरा प्राणों की भी परवाह ना करते हुए हम देखते उन्होंने लॉर्ड रामचंद्र की सेवा की. ठीक है, लॉर्ड रामचंद्र को सर्विस की उन्होंने, और अपने प्राण भी त्याग दिए, प्राण को भी दाव पे लगा दिया राम जी को खुश करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए. सो शुड लर्न फ्रॉम हिज सैक्रिफाइस. He fought with the demon, although he know that this Ravana is so powerful, I can never stand in front of him. But still, he fought with the Ravana just to please Lord Ramachandra and just try give his try and putting his best endeavor to protect Mother Sita and to please Lord Ramachandra, to serve Lord Ramachandra. So that time, then when Angada was speaking like that, there was one bird, you know. तो उधर एक बर्ड था, देन तो बहुत ओल्ड था, वो बहुत बड़ा था, तो वो सुन रहा था बातें. तो उस बर्ड ने बोला कि अरे अंगद, हु इज टॉकिंग अबाउट जटायु, कौन जटायु के बारे में बात कर रहा है ना, जटायु के बारे में कौन बात कर रहा है. बोले तो बोले जटायु इज माय ब्रदर. अब बताइए, तो मुझे ये सुन के बहुत दुख हुआ कि जटायु का मृत्यु हुआ, तो आप मुझे पूरे डिटेल में बताइए
कि एग्जैक्टली क्या है, के साथ जटायु की मृत्यु कैसे हुई है, उसने क्या किया, और आप इतने खुश क्यों हो जटायु के सेवा से, जटायु ने ऐसा क्या किया जो आप लोग खुश हो गए, और जटायु को किसने मारा, क्यों मारा, वो सब बताओ। तो उन्हें फिर पूरा स्टोरी जटायु का जो बता दिया उनको, कि रावण के साथ कैसे फाइट हुआ, माता सीता को प्रोटेक्शन में रावण ने कैसे मार डाला उनको, उनके पंख वगैरह काटे, सब बताया। देन जटायु बिकम सो सैड, है ना, एंड सो सैड, वो बहुत दुखी हुए, और उन्होंने बताया कि कैसे जटायु उनके भाई थे, और एक दिन वो तो उड़ते उड़ते गए, अगर फिर उनका बहुत लॉन्ग स्टोरी है, वो दोनों बिछड़ गए, उसके बारे में आपको कभी और टाइम पे बताएंगे, ठीक है। तो दोनों बिछड़ गए और उनके पंख जल गए थे सनलाइट, सन रेज की वजह से, ठीक है, उनके जटायु के, सॉरी संपाति के, तो इसलिए वो एक जगह पे गिरे पड़े थे। तो उस टाइम पे वो जब गिरे नीचे, जटायु अलग जगह पे गिरे ऊपर से, और ये संपाति अलग जगह पे गिरे, तो उस टाइम पे वो एक ऋषि के चरणों में गिरे। तो उस टाइम पे तो उनको लगा अभी पंख ही नहीं, तो उड़ भी नहीं सकते, कैसे जिएंगे। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं क्या करूंगा, इधर इस ये जो है पर्वत पे, एक पर्वत पे गिरे थे वो, ठीक है, इस पर्वत से मैं क्या कर, मेरा तो इससे कूद के सुसाइड करने का मन कर रहा है, लाइक दैट जटा संपाति वाज थिंकिंग, बट दैट ऋषि टोल्ड दैट डोंट थिंक लाइक दैट, in future you are going to become great instrument in the service of the Lord Ramachandra, so you are so fortunate that you are destined to serve Lord Ramachandra, just wait. Bole, I am also capable to give you wings again, but what happened, I will not do so, because the wing देंगे तो you will not get opportunity to serve Lord Ramachandra, so you just stay here, have patience, and क्या करो, आप क्या करो, इधर survive करो। कुछ सालों बाद क्या होंगे, कुछ वानर आ जाएंगे जो इनका सेवा, रामचंद्र की सेवा करने के लिए, माता सीता को ढूंढने के लिए। तो उस टाइम पे आपको उनकी मदद करनी है, उनको बताना है माता सीता के बारे में, और उनको किधर लेके गए क्या, तो आपने देखा रहेगा, आपको पता रहेगा, तो आपको उनको बताना है। तो दैट विल बी ग्रेट सर्विस अनटू लॉर्ड रामचंद्र, और उसी टाइम पे आपको क्या होंगे, आपके पंख भी वापस मिलेंगे। तो फिर संपत्ति ने डिटेल में सब स्टोरी बताया। फिर उन्होंने जो मंकी जो पूरे निराश हो गए थे, वो पूरे निराशा में डूब गए थे, तो उन्होंने बोला संपत्ति ने कि उस टाइम पे वो ऋषि ने उनको बोला था कि क्या होगा, चंद्रमा ऋषि थे, तो उन्होंने बताया था कि सारे जो मंकी आएंगे, अगर आप बताएंगे उनको लंका का पता, तो उन्हें बोला कि समुद्र से दूर 800 माइल के दूर पे एक वहां पे आइलैंड है, वहां पे देयर इज अ लंका, ठीक है, where Ravana stays and where he kidnapped Mother Sita and kept in the Lanka, so in the Ashok Vatika garden। तो उन्होंने संपत्ति ने बताया उनको सारा चीजें कि आप वहां पे जाएंगे तो आपको माता सीता मिल जाएंगी। और आप में से एक मंकी बोले कि वो ओशियंस, तो चंद्रमा ऋषि ने बताया था कि जो भगवान रामचंद्र के सेवक है, वो ये समुन्दर क्या वो जन्म मृत्यु का समुन्दर जो है, उसको भी आसानी से लांग जाते हैं, इस तो वैकुंठ चले जाते हैं वो, इस जन्म मृत्यु और भौतिक संसार को लांग के। तो ये समुद्र क्या चीज है उनके लिए, तो वो लांग सकते। तो बोले आप में से एक जो मंकी है वो क्या करेगा, समुद्र लांग के जाएगा, और बहुत जल्दी माता सीता के भी दर्शन होंगे उनको, और सीता माता के पास राम जी का संदेश देके वो फिर से माता सीता का पता लेके राम जी के पास वापस भी जाएगा, ऐसा ऋषि जी ने बताया था। और उनका बताया कभी गलत नहीं हो सकता, देखिए उन्होंने बताया था। तो इतने हजारों साल के बाद आप वापस आए, आप मिले, तो उनका जो प्रेडिक्शन था वो सही हुआ, ऐसा बताया उन्होंने, ठीक है। तो फिर ये त्रेता युग की बात है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो चीजें थी देखो कंप्लीटली अलग थी। अभी कुछ लोग बोलेंगे बर्ड्स कैसे बात कर सकते हैं, इतना साल कोई कैसे जी सकता है, ऑल दिस यूज टू हैपन इन द त्रेता युग। अभी जैसे शिवाजी महाराज के टाइम पे भी देखिए आयु अलग थी, उनका हाइट अलग था, उनका वेट अलग था, उनके कैपेसिटीज अलग थी। अभी के लोगों की कैपेसिटी अलग है। उनका जो तलवार था 65 kg का तलवार था, ऐसा मैंने सुना था शिवाजी महाराज का, है ना। अभी हमें हमारा वेट नहीं 65 kg बहुत सारे लोगों का, तो उतने वेट की तलवार उठा के फाइट करना तो छोड़ दो। तो अभी जैसे जैसे एज प्रोग्रेस हो रहा है, वैसे हाइट वेट से इंटेलिजेंस मेमोरी ये सब कम होता जा रहा है। तो उस टाइम पे त्रेता युग मतलब काफी हजारों साल पुरानी बात है। तो उस टाइम पे उनको अलग चीजें थी, ठीक है, तो कभी और डिस्कस करेंगे हम लोग। तो दैट टाइम देन वी कैन सी दैट दिस संपाति जो है, संपाति उन्होंने देखा कि उन्होंने सारी चीजें बताई कि माता सीता कहाँ मिलेगी आपको क्या। तो जैसे उन्होंने बताया वो सारी चीजें डिटेल, तो मंकीज जो थे बहुत खुश हो गए, उनको दे बिकम इंस्पायर्ड कि अरे वी आर नॉट फेल्ड इन आवर अटेम्प्ट्स, नाउ वी आर वेरी क्लोज टू आवर सक्सेस। और इधर ही अगर मर जाते या वापस केव में जाते तो क्या होता, हम ग्रेट फेल्योर, सक्सेस के इतने पास आके चले जाते हम लोग। देन दे बिकम सो थैंकफुल टू संपाति एंड
become rejuvenated by hearing the Sampati's words. And Sampati ने जैसे ये बताया उनको सब तुरंत ही immediately he got his wings back. उनको उनके पंख वापस मिले और वो क्या हो गए, पंख लेके पूरा तुरंत उन्होंने बोला कि आपको जरूर सक्सेस मिलेगा और आप माता सीता को ढूंढेंगे और माता सीता के दर्शन करके राम जी के पास भी वापस लौटेंगे बहुत जल्द। और ऐसा बोल के वो चले गए उधर से। तो फिर अभी वो समुद्र के किनारे गए और उनके फिर से होप्स जाग गए। एंड दैट टाइम देन उस टाइम पे देखा कि उन्होंने देखा कि वो गए उनके पास में, ठीक है। तो देखिए उससे लेसन्स क्या सीख सकते हैं हम लोग। तो अगर प्रजल्प बी पेशेंट, हैव फेथ, सर्व टू योर बेस्ट। तो उन्होंने क्या बोला कि जैसे वो सब बोल रहे थे कि अभी क्या होगा, ये करेंगे वो करेंगे, फालतू की बातें कर रहे थे सब लोग, ऐसा नहीं हुआ ये नहीं हुआ ऐसा नहीं, लैमेंट कर रहे थे ये वो। तो जब उन्होंने सुना संपत्ति ने, तो बट जब हनुमान जी ने सही बात बोली, अंगद जी ने जब उसको इंस्पायर करने को बोला, तो दैट टाइम देन संपत्ति केम हियर एंड दे गॉट हेल्प इमीडिएटली। तो उनको तुरंत क्या होगा, उनका जब एटीट्यूड सही हुआ एंड उन्होंने फालतू की बातें करना, फालतू का जो है लैमेंट करे, तो वो बंद कर दिया तुरंत। दे गॉट हेल्प फ्रॉम संपत्ति। एंड वो पेशेंट, यू हैव टू बी पेशेंट, ठीक है। एंड हैव फेथ, हमें भगवान के ऊपर या अपने एबिलिटीज के ऊपर और एंडेवर के ऊपर फेथ रहना चाहिए कि यस वी कैन डू, we can achieve great things by the mercy of the Lord. Lord gave us blessing that we can be successful, so we'll become successful if Lord wants, and if He wants that we'll get failure, we'll get failure. So we should have that faith कि जो भी हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है और भगवान अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो हमने संयम से काम लेना चाहिए और हमने जितना अपना कैपेसिटी है उतने बेस्ट सर्विस करना चाहिए, ठीक है। भगवान के लिए जो चीजें अपने को जो टास्क दिया गया है, हमने बेस्ट कैपेसिटी, जैसे स्टूडेंट है तो शुड स्टडी टू बेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी, जैसे बोला गया है टीचर्स ने, जैसे गाइड किया गया है हमें, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमने करनी चाहिए। तो देखिए दिस मीटिंग इज गोइंग टू एंड, सो प्लीज रीजॉइन अगेन विद द सेम आईडी एंड विल कंटिन्यू दिस अगेन। सो प्लीज rejoin everyone. Just a minute. I will end this meeting. You join again.